Hello dear students, I welcome you all in today's lecture. Today we are going to study about the next chapter, that is drawing, from the subject pharmaceutical engineering. So the drying is nothing but the removal of small amounts of water from material by the application of heat. Okay, so here in case of drying we are going to remove the small amounts of water or other liquid from the material by the application of heat. Okay, तो drying process में हम क्या करते हैं, either the drying process can carried out by the two ways. First one is the by the thermal process and another is the by the non-thermal process. Okay, so generally the thermal process deals with the application of heating, that is by heating, by providing the heat we can remove the small amount of water or other liquid from the material. Okay, and opposite to the thermal process, in non-thermal process the drying can achieve, means the removal of small amount of water can be done either by squeezing, okay, that is the spongy material. By application of the pressure the liquid or small amount of liquid can be removed from that particular method, so that's why the process is referred as the squeezing. Okay, next is the by absorption, that is example is the desiccant. Okay, so here in this case, in case of the absorption the desiccators are used, so that desiccator consists of the silica gel crystals which have the tendency to absorb the moisture. Okay, so जो मटेरियल, जिस मटेरियल में से हमको वो मॉइस्चर कंटेंट रिमूव करना है, या तो सीधा सीधा समझ लो उस पर्टिकुलर मटेरियल का हमको ड्राइंग करना है. ठीक है, तो हमें जिस मटेरियल का ड्राइंग करना है वो मटेरियल हम डेसिकेटर में रख देंगे. सो डेसिकेटर कंसिस्ट ऑफ अ सब्सटेंस और वन एलिमेंट विच इज नोन एज द सिलिका जेल क्रिस्टल्स. ओके, अब सिलिका जेल क्रिस्टल्स की क्या टेंडेंसी है, दैट इज सिलिका जेल क्रिस्टल्स पजेस द टेंडेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर. ओके, तो जो मटेरियल को हमें ड्राई करना है उस मटेरियल में ऑब्वियसली मॉइस्चर कंटेंट होंगे, तो जो सिलिका जेल क्रिस्टल्स वो डेसिकेटर में प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपका प्रोडक्ट ड्राई हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द अनदर नॉन थर्मल प्रोसेस ऑफ ड्राइंग. एंड लास्ट वन इज द बाय एक्सट्रैक्शन, दैट इज द मॉइस्चर or the liquid contents are extracted from the particular material. Okay, so here what is drying? Drying is nothing but the removal of small amount of water or other liquid from the material by the application of either heat, which is referred as thermal process, or by any another non-thermal processes. Okay, so we will see the introductory part of drying, various parameters, definitions which are involved in the drying. Okay, then applications of drying, and lastly the equipments of drying. Okay, so definition, that is it is removal of small amount of water or other liquid from a material by application of heat. Okay, so it also includes the removal of volatile liquids or water from another liquids or gas or suspension. Okay, so दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज द ड्राइंग, कि सिर्फ सॉलिड मटेरियल में से ही मॉइस्चर कंटेंट को निकालेंगे हम, तो वही प्रोसेस को सिर्फ ड्राइंग नहीं बोलेंगे. ओके, सो व्हाट अगेन विच प्रोसेस इज टर्म्ड एज ड्राइंग, कि अगर हम दूसरे वाटर में से वोलेटाइल लिक्विड निकालते हैं या दूसरे लिक्विड में से हम लिक्विड को रिमूव करते हैं वोलेटाइल लिक्विड को, सो दैट इज ऑल्सो रेफर्ड एज ड्राइंग. ओके, से फॉर एग्जाम्पल वाटर और आपका वोलाटाइल लिक्विड है कोई भी, चलो ठीक है, तो वो वोलाटाइल लिक्विड जैसे कि अल्कोहल है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो लिक्विड को हम टेम्परेचर देके या किसी दूसरे मेथड से अगर रिमूव करते हैं तो वो भी ड्राइंग हो गया. सिर्फ सॉलिड में से ही अगर मॉइस्चर कंटेंट हम बाहर करेंगे तो उसे ही सिर्फ ड्राइंग नहीं बोलेंगे. ओके, ड्राइंग इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ ऑल और मोस्ट ऑफ द लिक्विड बाय सप्लाइंग द हीट टू cause the thermal vaporization, because as we are providing the heat to the substance, so it is referred as the thermal vaporization. Okay, then next is the application of drying, कि जो हम ये drying कर रहे हैं, where this drying process is applicable in the pharmaceutical industries. First is the in preparation of the bulk drugs. Okay, so example is the dried aluminum hydroxide spray dried lactose powdered
extracts. Okay, so these are the example which are used in the preparation of bulk drugs. ठीक है, तो ड्राइंग प्रोसीजर यूज करके बल्क ड्रग्स के प्रिपरेशन में हम ड्राइंग प्रोसेस को यूज कर सकते हैं. ये तो या तो ये वहां पे अप्लीकेबल है. ओके, नेक्स्ट इज द प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट. वाई? बिकॉज कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द presence of moisture your product or drug product can get contaminated. So इसके लिए हमें क्या चाहिए? ड्राइड प्रोडक्ट चाहिए. So this drying process can also help in the preservation of drug product. Okay, so ड्राइंग इज नेसेसरी टू अवॉइड द डिटोरिएशन. कि क्या होगा अगर मॉइस्चर कंटेंट नहीं होगा, ड्रग आपका ड्राइड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तो उसके वजह से क्या होगा? ड्रग का डिटोरिएशन आप अवॉइड कर सकते हो. ओके, एग्जाम्पल क्रूड ड्रग्स ऑफ एनिमल एंड वेजिटेबल ओरिजिन. जनरली क्या होता है कि जो क्रूड ड्रग वेजिटेबल नेचुरल सोर्सेज से हमें मिलते हैं, आइदर एनिमल्स वेजिटेबल, तो उनमें ज़्यादा मॉइस्चर के ट्रेसेस होते हैं. तो एट दैट टाइम ड्राइंग इज अ इम्पॉर्टेंट स्टेप. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. देन सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक ड्रग, एस्पिरिन, पेनिसिलिन टैबलेट्स undergoes the decomposition process because they have the more amount of moisture content into their drug product. So that's why the drying step is necessary in certain drug products. ठीक है, क्यों? to avoid their deterioration. ठीक है. So next example is the blood products. Skin and tissue undergo the microbial decomposition. So to avoid this also the drying is useful. Okay, then improved कैरेक्टरिस्टिक्स. कि क्या होता है कि ड्राइंग को यूज करके द कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी इम्प्रूव. जैसे कि क्या होगा, आपके मटेरियल का कोई भी फिजिकल पैरामीटर या केमिकल पैरामीटर होगा तो वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं. ओके, से फॉर एग्जांपल कि मटेरियल में मॉइस्चर कंटेंट नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि मटेरियल का डिग्रेडेशन, डिटोरिएशन को हमने ओवरकम किया है. ठीक है, मतलब मटेरियल का डिग्रेडेशन, डिकम्पोजिशन को ओवरकम किया है. मतलब क्या? मटेरियल का हमने लाइफ बढ़ा दिया है. ठीक है, इसका मतलब क्या है? वी हैव एनहांस्ड द स्टेबिलिटी of that particular material. Okay, so here what is happened here? The characteristics of or the physical stability of the particular material is enhanced. Okay, so this is the significance of drying into that particular thing. Okay, so drying produces the material of spherical shapes, uniform size, फ्री फ्लोइंग एंड एनहांस्ड सोल्यूबिलिटी. ठीक है, कि ड्राइंग स्टेप को फॉलो करके हमें मटेरियल्स कैसे हम अचीव कर सकते हैं? स्पेरिकल शेप का मटेरियल जिसका साइज यूनिफॉर्म हो, जो कि फ्री फ्लोइंग हो. जैसे कि टैबलेट के केस में, टैबलेट्स में हम क्या करते हैं? आइदर वी आर डायरेक्टली कंप्रेसिंग द पाउडर और वी आर प्रिपेयरिंग द ग्रैन्यूल्स एंड आफ्टर दैट वी आर कंप्रेसिंग दैट ग्रैन्यूल्स इनटू द टैबलेट्स. ओके, सो फॉर दैट पर्पस what is the desired state for the particular powders? That is the powders or granules should be in their free flowing form. ठीक है, कि हॉपर में से आपका डाई कैविटी तक आने के लिए आपको पाउडर क्या चाहिए? फ्री फ्लोइंग फॉर्म. अगर आपका पाउडर इजीली या फ्रीली फ्लोइंग नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? इट कैन बी स्टिक और अडेयर टू योर इक्विपमेंट्स. हॉपर को चला जाएगा, मतलब क्या होगा? लॉस ऑफ पाउडर होगा. मतलब आपका वेट आप अचीव कर सकोगे क्या? समझो 500 mg आपको टैबलेट बनानी है, लेकिन वो फ्रीली फ्लोएबल नहीं है, इधर उधर जाके स्टिक कर रहा है, कहीं तो अडेयर हो जा रहा है. मतलब क्या 500 mg आपने वे किया है, लेकिन 500 पूरा आपका कॉम्प्रेस हो रहा है क्या? नहीं, मतलब लॉस हो सकता है मटेरियल का. ओके, सो तो ओवरकम ऑल दिस प्रॉब्लम इफ द मटेरियल इज ड्राइड प्रॉपरली, मीन्स उसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं है, तो इट कैन बी इजीली और फ्रीली फ्लोएबल. ओके, एंड दस द सोल्यूबिलिटी इज ऑल्सो एनहांस. तो ये सारे जो चीज़ें हैं, सो दिस कैन बी हेल्पफुल टू योर for your bioavailability of your product, to enhance their physical and chemical stabilities, etc. Okay, example, granules are dried to improve the fluidity एंड कंप्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि ग्रैन्यूल को ड्राई क्यों करते हैं? ग्रैन्यूल की फ्लो प्रॉपर्टी को एनहांस करने के लिए, प्लस उसके कंप्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी एनहांस करने के लिए. ओके, सो नेक्स्ट इज द इम्प्रूव्ड हैंडलिंग. ओके, अगेन कि क्या होता है कि अगर आपके मटेरियल में मॉइस्चर प्रेजेंट है तो आपका मटेरियल हेवी होगा. ठीक है, और उसका अपोजिट अगर आपके मटेरियल में मॉइस्चर नहीं है तो वो लाइटर होगा. तो जो हेवी है उसको कैरी करने में, ट्रांसफर करने में, हैंडल करने में ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे एज कम्पेयर टू जो कि लाइटर है. ओके, सो दिस इज द अनदर सिग्निफिकेंस ऑफ योर
ड्राइंग। ओके, अगेन अगर मटेरियल आपका वेट होगा, उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, या उसको आपको ट्रांसपोर्ट करना होगा, तो अगेन क्या प्रॉब्लम आ सकता है, कंटेमिनेशन का। तो वो कंटेमिनेशन का प्रॉब्लम भी ट्रांसपोर्टेशन में और हैंडलिंग में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो उसको भी ओवरकम करने के लिए यू हैव टू अंडरगो द ड्राइंग प्रोसेस। ओके, सो रिमूवल ऑफ मॉइस्चर मेक्स द मटेरियल लाइट इन वेट and reduces the bulk, thus the cost of transportation will be less and storage will be efficient. So this is the benefit of drying in case of the handling. ठीक है, कि अगर आप प्रॉपर ड्राई करते हो, मतलब उसमें के मॉइस्चर निकाल देते हो, मॉइस्चर निकालने की वजह से आपका लाइटर हो जाएगा, वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उसके कम हो जाएंगे, प्लस उसका क्या होगा, स्टोरेज आपका ज़्यादा इफिशिएंट हो जाएगा। ओके, तो स्टेबिलिटी एनहांसमेंट बाय रिमूवल ऑफ मॉइस्चर significantly reduces the rate of chemical reactions. Okay, now what is happening here कि स्टेबिलिटी एनहांसेस, अगर आप आपके पर्टिकुलर ड्रग का मटेरियल ले लो, चलो कि मटेरियल का स्टेबिलिटी एनहांसमेंट कर रहे हो, क्यों एनहांस कैसे करोगे आप उसका स्टेबिलिटी, बाय रिमूविंग और बाय रिड्यूसिंग द मॉइस्चर कंटेंट इनटू ऑफ दैट प्रोडक्ट। ओके, सो दिस विल reduces the rate of chemical reaction, that is the chances of microbial attack or enzymatic action, and thus improves the stability. ठीक है, अगर आप उसमें मॉइस्चर नहीं रख रहे हो तो कोई भी मतलब कौन से भी वे से उस पर माइक्रोब्स आपके अटैक नहीं करेगा, ना उसका कोई एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होगा, ना कोई उसमें एंजाइमेटिक एक्शन होगा। ठीक है, देखो आप कोई भी ड्रग प्रोडक्ट को बनाते हो, मतलब क्या, वो थेरापेटिकली उसी फॉर्म में एक्टिव होना चाहिए, मतलब आगे उसका कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो वो उसको 100% डिटोरिएट करेगा, या तो आपको जो आपका थेरापेटिक एक्शन चाहिए वो नहीं देगा। ठीक है, मतलब आपको चेंज चाहिए क्या, नहीं, आपका मटेरियल एज इट इज़ वैसे ही स्टेबिलिटी में होना चाहिए, लास्ट तक, एंड तक, उसके एक्सपायरी डेट तक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अचीव करने के लिए you have to enhance the stability of that material by reducing its moisture content. ठीक है, अगर आप वो मटेरियल का मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करोगे, मतलब स्टेबिलिटी उसकी बढ़ा दोगे, स्टेबिलिटी बढ़ा दोगे मतलब जो भी केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है, चांसेस ऑफ माइक्रोबियल अटैक्स है, या तो एंजाइमेटिक एक्शन है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसके साथ नहीं होगी वो ड्रग प्रोडक्ट के साथ, thus आपकी stability is enhanced or improved. Okay, so this is the case of drying in case of your handling or transportation of your material. Okay, now that was the application of drying. Now next we will move towards the theory of drying. Okay, so in the wet solid mass moisture is present in the two forms. ठीक है, कि जब हम आपका वेट सॉलिड मास रहेगा, ठीक है, वेट सॉलिड मास मतलब क्या, कि आपका ऐसा सॉलिड जिसमें आपका मॉइस्चर कंटेंट है, okay, amount of moisture is present there. Okay, so in that case the moisture is content in present in two forms. First one is the bound moisture, and another one is the unbound moisture. Okay, now first, what is bound moisture? Okay, so bound moisture is nothing but the minimum water held by the substance which exerts the less equilibrium pressure than the प्योर वाटर, ओके, एट द सेम टेम्परेचर। ओके, तो जनरली द हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स अगर आपने पढ़ा होगा, जैसे कि आपका क्या है, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस NaCl, ठीक है, आपने देखा है ना NaCl लैब में प्रैक्टिकल करते टाइम पे कि क्या NaCl को आप वे करते हो और उसको 10 मिनट तक छोड़ देते हो तो क्या होगा, वो मॉइस्चर, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगा। सो दैट्स वाई उसमें क्या टेंडेंसी होती है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की, सो दैट्स वाई इट इज रेफर्ड एज द हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस आर जनरली द substances which contain the bound water, मतलब क्या, मिनिमम वाटर, सब्सटेंस में मिनिमम वाटर रहता है जिसका जो लेस इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर को एक्सर्ट करता है देन द प्योर वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मतलब क्या, कि वही टेम्परेचर पे उसका पर्टिकुलर वो सब्सटेंस इट विल कंसिस्ट द लेस इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर देन द प्योर वाटर। अगर उसका कंपैरिजन आप करोगे प्योर वाटर के साथ तो उसका इक्विलिब्रियम कम होगा, उसका वेपर प्रेशर का इक्विलिब्रियम कम होगा एज कंपेयर टू द प्योर वाटर, मीन्स दिस इज कॉल्ड द बाउंड मॉइस्चर, जिसका इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर प्योर वाटर से कम हो सेम टेम्परेचर पे, दैट मॉइस्चर इज रेफर्ड एज द बाउंड
मॉइस्चर, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेपर प्रेशर प्योर वाटर से कम हो रहा है सेम टेम्परेचर पे, उसका अपोजिट अनबाउंड मॉइस्चर, ठीक है, कि विच एक्सर्ट्स द इक्वल इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर दैन द प्योर वाटर एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है, कि आपका क्या होगा कि उतना अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। अनबाउंड का कैसे लोगे आप कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड बाय द मटेरियल दैट एक्सर्ट्स इक्वल इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर टू दैट ऑफ द प्योर वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मतलब क्या दोनों में कंडीशन सेम है, दोनों की टेम्परेचर सेम रहेगी, पर बाउंड में इतना वाटर, इतना अमाउंट ऑफ वाटर वो पर्टिकुलर मटेरियल को पकड़ के रखेगा कि जो लेस इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर शो करेगा इफ कंपेयर्ड विद द प्योर वाटर बट एट सेम टेम्परेचर। उसका अपोजिट, उसमें लेस इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर था, तो अनबाउंड में क्या होगा, इट exerts the equal equilibrium vapor pressure to that of the pure water at the same temperature. So these are the two types of, means this is how the moisture is present into two forms. First is the bound moisture and another is the unbound moisture. Okay, so here what is happening here कि क्या है कि first is so here hygroscopic material जिसमें कि क्या है water is present in the fine capillaries, cells or fibers or the biophysical interaction. Okay, so it contains the bound water. So what is the condition here, vapor pressure of wet solid is less than the vapor pressure of pure water. सिर्फ याद रखना है आपको कि आपका सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या है, कम है टू दैट ऑफ द प्योर वाटर। ओके, उसके अपोजिट इसका नॉन हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स का या तो अनबाउंड वाटर ले लीजिए कि पहली बात तो नॉन हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स में द वाटर और द मॉइस्चर इज प्रेजेंट इन द वॉइड स्पेसेस, ओके, एंड इट कंटेन्स द अनबाउंड वाटर। मतलब क्या है अनबाउंड वाटर का, सीधा सीधा कि इक्वल वेपर प्रेशर दोनों के इक्वल है, जो कि वेपर प्रेशर ऑफ वेट सॉलिड एंड वेपर प्रेशर ऑफ योर प्योर वाटर, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस। और सीधा सीधा याद रखिए कि मॉइस्चर आपके सब्सटेंस में दो फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, एक तो बाउंड में जिसमें वेपर प्रेशर आपके वेट सॉलिड का लेस होगा आपके एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर से, पकड़ लीजिए, या तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर का, ठीक है। और हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स बाउंड वाटर को कंटेन करते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज द अनबाउंड वाटर, जिसमें क्या होगा कि नॉन हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स वॉइड स्पेसेस में प्रेजेंट रहेंगे जिसमें दोनों वेपर प्रेशर सेम होंगे, ठीक है। आपका वेट सॉलिड का और आपके प्योर वाटर का दोनों वेपर प्रेशर सेम होंगे। ओके, सो दिस इज द बेसिक थियरी how the moisture is present into two forms in the particular material, that is in the bounded form or unbounded form. Okay, now the mechanism of your drying, ठीक है, कि ड्राइंग तो होता है पर कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करके ड्राइंग होता है। सो the drying mechanism is followed by the two parameters or two types of transfers. First is two types of transformations. First is the heat transfer and another is the mass transfer. Okay, so listen carefully here. So drying involves both heat and mass transfer simultaneously. Now what is heat transfer? Say for example, ये दोनों चीज़ों को पढ़ने के लिए आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि आपने नॉर्मली एक बर्नर चलाया हुआ है और उस बर्नर पे नहीं क्या आपका एक वेट मास रखा है, ठीक है। वेट मास रखा है तो जनरली बर्नर में से जो हीट एक्सचेंज होके आपके वेट मास तक जा रही है, दैट इज नथिंग बट योर हीट ट्रांसफर, ठीक है। कि आपका हीटिंग मटेरियल क्या है, आपका यहाँ पे बर्नर, और सॉलिड मटेरियल क्या है आपका, जिसको आपको ड्राई करना है सीधा सीधा, ठीक है। तो जिसको ड्राई करना है आपने वो बर्नर के ऊपर रखा है और बर्नर हो गया आपका हीटिंग मटेरियल। तो हीट एक्सचेंज हो रही है, मतलब सॉलिड मटेरियल पहले उसका टेम्परेचर उतना नहीं होगा लेकिन आप उसको बर्नर पे रख रहे हो, मतलब क्या हो रहा है, बर्नर का टेम्परेचर आप के सॉलिड मटेरियल तक जा रहा है, मतलब यहाँ पे हीट इज एक्सचेंज्ड, ओके, हीट इज ट्रांसफर्ड through your heating material up to your solid material. So this is the heat transfer, ठीक है। अगेन अब क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर होने के बाद आपके बर्नर में से सॉलिड मटेरियल तक आपके सॉलिड मटेरियल में का वाटर क्या होगा, एटमॉस्फेयर में लॉस हो जाएगा इन द फॉर्म्स ऑफ वेपर्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे सॉलिड का वेट पहले ज़्यादा रहेगा लेकिन उसमें से मॉइस्चर के ट्रेसेस बाहर निकलने के बाद जो कि आपका एटमॉस्फेरिक
सराउंडिंग में जाएगा आपका, ठीक है, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में जाएगा वेपर्स के फॉर्म में, मतलब आपका सॉलिड वेट जो पहले था उसका वेट अब कम हो जाएगा, वो लाइटर हो जाएगा, क्योंकि ड्राइंग हो रहा है, वेपर्स के फॉर्म में मॉइस्चर जा रहा है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, आपका वेट कम हो रहा है, वेट कम हो रहा मतलब क्या हो रहा है, मास ट्रांसफर हो रहा है आपका। सो दैट इज नथिंग बट द मास ट्रांसफर, मीन्स ड्राइंग में दो साइमल्टेनियस प्रोसेस से ड्राइंग होता है। फर्स्ट होता है हीट ट्रांसफर, जो कि आपका हीटिंग मटेरियल से आपको जिसका ड्राइंग करना है वो मटेरियल तक जाएगा, दैट इज हीट ट्रांसफर। एंड अनदर, आपका मटेरियल हीट होने के बाद उसमें के मॉइस्चर के ट्रेसेस एटमॉस्फेरिक या सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में वेपर्स के फॉर्म में जा रहे हैं, मतलब उसका मास रिड्यूस हो रहा है, मास उसका या वो लाइटर हो रहा है, दैट इज नथिंग बट योर मास ट्रांसफर। ओके, हीट ट्रांसफर इट टेक्स प्लेस फ्रॉम द हीटिंग मटेरियल टू द सॉलिड मटेरियल। देन मास ट्रांसफर में क्या हो रहा है, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ मॉइस्चर to the surface of solids and subsequently the vaporization from surface into the surrounding. Okay, so this is how the drying is carried out, that is it follows the two mechanisms. First one is the heat transfer and another one is the mass transfer. Okay, now next is the various theories which are proposed to explain the movement of moisture. ठीक है, अब पूरा खेल ड्राइंग में किस चीज पे बेस्ड है कि मॉइस्चर आपके सॉलिड वेट को, सॉलिड मास को या लिक्विड को, चलो जिसमें से भी आपको मॉइस्चर बाहर निकालना है, एक तो लिक्विड में रहेगा तो वोलाटाइल मॉइस्चर को बाहर निकालोगे आप, और सॉलिड में रहेगा तो आपका वोलाटाइल या नॉर्मल मॉइस्चर को आप बाहर निकालोगे, ठीक है, नॉन वोलाटाइल को। ओके, तो मॉइस्चर कौन से थियोरीज को फॉलो करके आपके मटेरियल को छोड़ेगा, दैट इज नथिंग बट योर मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सॉलिड और ड्राइंग मीडियम, जिससे आपको मटेरियल या मॉइस्चर बाहर निकालना है। ओके, सो इट इज बेस्ड ऑन द थ्री थियोरीज। फर्स्ट वन इज द डिफ्यूजन थियोरी, देन द कैपिलरी थियोरी एंड नेक्स्ट इज द प्रेशर ग्रेडियंट थियोरी। ओके, सो वी विल सी इट वन बाय वन। नाउ फर्स्ट इज द डिफ्यूजन थियोरी, सीधा सीधा एग्जाम्पल, ठीक है, कि हियर योर जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, सो हीट ट्रांसफर इज डिफ्यूज्ड फ्रॉम द वन वाटर मॉलिक्यूल। सीधा सीधा यहाँ पे समझो कि आपका वेट सॉलिड है और उसमें जो लिक्विड को आपको हटाना है, बाहर निकालना है सिस्टम में वेपर्स के फॉर्म में, दैट इज नथिंग बट योर वाटर मॉलिक्यूल। ओके, सो इसमें क्या हो सकता है कि इन दिस केस डिफ्यूजन थ्योरी क्या होता है कि वाटर विल डिफ्यूज, ठीक है, कि सॉलिड सरफेस में से वाटर, चलो बॉटम में जो प्रेजेंट रहेगा वाटर मॉलिक्यूल वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो वो अपना हीट डिफ्यूज करेगा नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल में, नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपना हीट डिफ्यूज करेगा दूसरे नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल में। ऐसा करते करते टॉप पे सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल है वहां तक हीट एक्सचेंज होगी और वो सिस्टम में से, आपके वेट सॉलिड में से एटमॉस्फेयर में वेपर्स के फॉर्म में से बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज द सिंपल diffusion theory. Okay, so according to this theory what happens, water diffuses through the solid into the surface, ठीक है, water का diffusion होता है through the solid to the surface, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो bottom में से heat लेके खुद को पास कर रहा है ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, और at last बाहर सिस्टम में वेपर्स के फॉर्म में वो निकल जा रहा है in the form of diffusion. Okay, and evaporates into the surrounding. Okay, evaporation of waters occurs at an intermediate zone that is much below the solid surface, then vapors diffuses through the solid into air. Okay, so this is how the diffusion will work. Okay, then next is the capillary theory. Okay, so capillary means सीधा सीधा कि diffusion theory में क्या हो रहा है, खुद का हीट वो ट्रांसफर कर रहे हैं एक वाटर मॉलिक्यूल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे करते करते सरफेस तक आने के बाद वो एटमॉस्फेयर में वेपर्स के फॉर्म में चले जाएंगे हीट ट्रांसफर होते होते, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कैपिलरी थ्योरी। इसकी क्या होता है कि द नंबर ऑफ कैपिलरीज आर प्रेजेंट, ठीक है, तो वो कैपिलरी के आजू बाजू में कौन प्रेजेंट रहेगा, आपके वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अगेन वाटर मॉलिक्यूल में हीट एक्सचेंज करते करते वो, ठीक है, हीटिंग मीडियम से हीट कैप्चर कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसके बाद हीट एक्सचेंज करते करते कैपिलरी में से सीधा वो बाहर ऊपर सरफेस की तरफ जाएंगे और वो सरफेस में से आपका सराउंडिंग में वेपर्स के फॉर्म में वो बाहर निकल जाएंगे। सो क्या होता है यहाँ पे, कैपिलरी में से आपके वाटर मॉलिक्यूल या आपका मॉइस्चर
वेपर्स के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में निकल रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज रेफर्ड एज द कैपिलरी थियरी। ओके, डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूज कर रहे हैं वो खुद को, वो सॉलिड मटेरियल में से वाटर कंटेंट खुद को डिफ्यूज करके सराउंडिंग में जा रहे हैं। और कैपिलरी में क्या होता है कि नंबर ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट, उस नंबर ऑफ कैपिलरीज में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल वो कैपिलरीज में से सराउंडिंग में बाहर हो जाते हैं, सो दैट्स व्हाई दिस थियरी इज रेफर्ड एज द कैपिलरी थियरी। ओके, so it is applicable to the porous granule solid because these polar granule solids consist of number of capillaries. Okay, so at the surface cross section of these capillaries forms various sizes of pores, and from that pores the moisture is converted into that vapor by the transfer of heat, and it is then in the form of vapors, it is passed through the atmosphere. Okay, so as drying starts, a meniscus is formed which exerts a force. Okay, so this is the driving force for the movement of water through the pores towards the surface. ठीक है, जो कि मैंने बताया कि क्या है कि एक ड्राइंग, जब ड्राइंग स्टार्ट होगी तो एक मिनिस्कस फॉर्म करेगा जिसकी वजह से एक फोर्स, प्रेशर जनरेट होगा। सो दिस इज द ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स मतलब यहाँ पे कौन सा प्रोसेस शुरू है, ड्राइंग। तो ड्राइंग के लिए this force will act as a driving force, and thus the movement of water will occur through the pores towards the surface. Okay, so this is how the capillary theory works कि कैपिलरी में से आपका पोर्स में से आपका वाटर मॉलिक्यूल सराउंडिंग में वेपर्स के फॉर्म में बाहर जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इज द प्रेशर ग्रेडियंट थियरी। ओके, सो इसमें क्या होता है, सीधा सीधा आपके रेडिएशंस जो आपके गैमा रेज, एक्स रेज जो आप बोलते हो ना, जैसे कि ओवन में रहेगा कि पर्टिकुलर आपका हीट आता है जाता है, आता है जाता है। ठीक है, इसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, आने के बाद वो अपना टेम्परेचर देगा, टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा, वो फिर से जाएगा, फिर से आएगा, ऐसे करते करते मतलब यहाँ पे डायरेक्ट हीट सप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे रेडिएशन से। ठीक है, थ्रू रेडिएशंस द हीट इज प्रोवाइडेड टू योर सॉलिड मटेरियल, या तो जिसका आपको ड्राइंग करना है वो। ओके, सो प्रेशर ग्रेडियंट थ्योरी इज अप्लीकेबल टू द ड्राइंग सॉलिड्स बाय एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन, नॉट एक्सटर्नल हीटिंग। आपको यहाँ पे बर्नर या दूसरा कोई हीटिंग का दूसरा फैक्टर ना करते हुए यूज़, आपको रेडिएशन का यूज़ करना है। ओके, मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल हीटिंग नहीं होगी, जैसे कि आपकी ओवन में नीचे से आपको बर्नर लगाने की ज़रूरत है क्या, नहीं, वहाँ पे क्या होगा, आपका रेडिएशंस के वजह से आपका जो भी मटेरियल है वो हीट कैप्चर कर लेगा। ओके, सो द रेडिएशन इंटरेक्ट्स विद द पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स। ओके, मतलब क्या होगा कि यहाँ पे वो कैटायनिक एनायनिक ऐसे फॉर्म में वो खुद को ट्रांसफर करेंगे। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज रेफर्ड एज द it will interact with the polarized molecules. Okay, so this field aligns the molecules in order which otherwise randomly arranged. ठीक है, जो कि पहले randomly arranged थे, तो ये पोलराइजेशन के वजह से, ये इंट्रैक्शन के वजह से जो कि रेडिएशन और पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स में होगा, सो उसके वजह से एक फील्ड की अलाइनमेंट होगी जो कि पहले रैंडमली अरेंज थे। ओके, सो व्हेन द फील्ड इज रिवर्स्ड, जब ये फील्ड आपका रिवर्स्ड हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल ओरिएंटेशन, जैसे पहले थे रैंडमली अरेंज्ड वैसे वो अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। ओके, सो इन दिस प्रोसेस इट गिव्स अप अ रैंडम काइनेटिक एनर्जी और द हीट। ठीक है, तो ये कैटायनिक एनायनिक ऐसे करते करते वो क्या हो जाएंगे, उसमें देर विल बी द जनरेशन ऑफ रैंडम काइनेटिक एनर्जी और द हीट इनसाइड द सर्फेस ऑफ योर सॉलिड। ओके, सो as a result a vapor pressure gradient is developed which is the driving force. ठीक है, कि इससे क्या होगा, the vapor pressure gradient means क्या, the fluctuation, concentration, increment decrement which will result in the vapor pressure gradient, and this is the driving force for the drying due to which the movement of vapors towards the surface will occur. मतलब यहाँ पे क्या होगा कि डायरेक्ट एक्सटर्नल हीटिंग नहीं हो रहा है, आपका रेडिएशन के वजह से क्या हो रहा है, आपका अरेंजमेंट हो रहा है, कैटायनिक एनायनिक ऐसे पोलराइज मॉलिक्यूल से वो डील कर रहे हैं, जिसके वजह से क्या होगा, आपका वहाँ पे एक हीट एनर्जी या तो रैंडम काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगा, जिसके वजह से इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वेपर प्रेशर ग्रेडियंट, एंड दिस इज नथिंग बट द ड्राइविंग फोर्स इन केस ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट थियरी, जिसके वजह से देयर विल बी द मूवमेंट ऑफ वेपर्स टुवर्ड्स द सरफेस, मतलब सरफेस में से अगेन आपका अब क्या होगा, वेपर सराउंडिंग में चला जाएगा। ओके, सो दीज आर द 3 mechanisms
जिसके वजह से थ्री थियरीज जिसके वजह से आपका मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर होगा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्राइंग प्रोसेस. फर्स्ट वन इज द डिफ्यूजन थियरी, कैपिलरी थियरी एंड लास्ट वन इज द प्रेशर ग्रेडियंट थियरी. ओके, डिफ्यूजन थियरी में क्या होगा, सीधा सीधा मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल टू वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूजन होगा फ्रॉम बॉटम टू द टॉप. ओके, उसके बाद वो सराउंडिंग में वेपर चले जाएगी. कैपिलरी में क्या होगा, नंबर ऑफ कैपिलरीज आर प्रेजेंट, जो कि पोर्स हो गए, उसमें से आपका मॉइस्चर कंटेंट वेपर्स के फॉर्म में बाहर जाएगा. और प्रेशर ग्रेडियंट में क्या होगा कि प्रेशर के फ्लक्चुएशन के वजह से, जो कि डायरेक्ट एक्सटर्नल हीट से नहीं ना मिलते हुए आपके रेडिएशन से मिल रही है, और आपका वो रेडिएशन क्या कर रहा है, रैंडमली अरेंज्ड मॉलिक्यूल्स का एक फील्ड अलाइन कर रहा है, फिर से उसको रैंडम फॉर्म में ला रहा है, जिसके वजह से आपका काइनेटिक एनर्जी या तो हीट जनरेट हो रहा है, और वो रिजल्ट कर रहा है आपका वेपर प्रेशर ग्रेडियंट में, जिसके वजह से आपका मूवमेंट वेपर्स को मिल रहा है फ्रॉम बॉटम टूवर्ड्स द सरफेस, जिसके वजह से वो फिर वेपर्स कहाँ जाएंगे, सराउंडिंग में. मतलब आपका मॉइस्चर कम हो रहा है आपके सॉलिड वेट में से. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर दैट इज इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट. ठीक है, सो यहाँ पे दिस पैरामीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ ड्राइंग. ओके, नाउ व्हाट इज इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट. से फॉर एग्जांपल, अब ये तो हम पढ़ेंगे, चलो जो स्लाइड पे है. ओके, सो आप एक रूम में प्रेजेंट हो जिसका, और नहीं क्या, सर्दी के दिन है, चलो ठीक है, तो आपका नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, आपका रूम टेम्परेचर 25 to 30 से तो कम ही होता है, 25 to 28 डिग्री सेल्सियस, चलो 27 डिग्री सेल्सियस प्रेजेंट है आपका. ठीक है, तो इन दैट केस आप क्या कर रहे हो, एक हॉट चीज़ वो रूम में रख रहे हो और एक कोल्ड चीज़. ठीक है, मतलब हॉट में ले लो आप हॉट कॉफ़ी रख रहे हो, और कोल्ड में ले लो कोल्ड कॉफ़ी रख रहे हो. ठीक है, तो दो आपके कॉफ़ीज है वो रूम में प्रेजेंट, एक हॉट कॉफ़ी एक कोल्ड कॉफ़ी. ठीक है, तो कोल्ड कॉफ़ी का टेम्परेचर चलो है आपका 15 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, उससे भी कम रहेगा, 8 या 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा. ठीक है, और आपका हॉट कॉफ़ी का है चलो कि से फॉर एग्जाम्पल 35 डिग्री सेल्सियस, चलो ले लो. ठीक है, तो यहाँ पे अब हॉट कॉफ़ी क्या करेगा आपका, कि हॉट कॉफ़ी खुद का टेम्परेचर उसका ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द रूम टेम्परेचर. ठीक है, तो वो खुद में से क्या करेगा, आपका हीट एक्सचेंज करेगा, हीट को बाहर निकालेगा. कब तक, जब तक उसका टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर इक्वल ना रहे. ठीक है, और उसके अपोजिट अब कोल्ड कॉफ़ी क्या करेगा, कोल्ड कॉफ़ी आपका सराउंडिंग में का टेम्परेचर कोल्ड कॉफ़ी के साथ एक्सचेंज होगा, वो खुद का टेम्परेचर उसको देगा. कब तक, जब तक आपका कोल्ड कॉफ़ी का टेम्परेचर बढ़ के रूम टेम्परेचर तक ना आए. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है. सो दिस इज नथिंग बट, मतलब क्या कि दोनों के वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल होना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट. ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉलिड विच एक्सर्ट्स अ वेपर प्रेशर इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ एटमोस्फियर सराउंडिंग टू इट. ठीक है, कि ऐसा सॉलिड जिसमें पर्टिकुलर मॉइस्चर प्रेजेंट है. ठीक है, कि या तो वाटर प्रेजेंट है, उसका वेपर प्रेशर आपके एटमोस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल होना चाहिए. तो समझो ऐसा सॉलिड जिसका वेपर प्रेशर वो जिस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर के इक्वल होगा. सो दैट इज रेफर्ड एज द इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट. मतलब उसमें वो सॉलिड वेट में और उसके सराउंडिंग में वेपर प्रेशर क्या है आपका इक्वल है, मॉइस्चर कंटेंट क्या है आपका इक्वल है. ओके, तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि एट इक्विलिब्रियम व्हाट हैपन्स, द वेपर प्रेशर ऑफ वेट मास इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर. ओके, सो दिस इज रेफर्ड एज द इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट. क्यों ये जरूरी है पैरामीटर पढ़ना, बिकॉज आप कौन से भी सब्सटेंस को अगर ड्राई करोगे तो आप लिखते हो ना, आपको प्रोसीजर में पढ़ते हो कि इसको हमें 120 डिग्री सेल्सियस के लिए आपको 1 आवर तक आपको क्या करना है, इसको ड्राई करना है. मतलब आप 1 घंटे के लिए उसको ड्राई करते हो 120 डिग्री सेल्सियस पे. क्यों, बिकॉज उसका EMC इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट पहले से ही स्टडीड होता है. क्यों, क्योंकि उन दोनों को मॉइस्चर कंटेंट मतलब सराउंडिंग मॉइस्चर कंटेंट और खुद का मॉइस्चर कंटेंट को अचीव करने में इतना इतना टेम्परेचर लग सकता है. तो वो स्टडी कौन से बेसिस पे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट. ये पैरामीटर पढ़ने के बाद ही हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये सब्सटेंस को ड्राई होने के लिए इतना टाइम
और इतना टेम्परेचर लग सकता है। क्यों इतना टाइम? क्योंकि एक्सचेंज करना पड़ेगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम को अचीव करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज वाई द इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ okay, so next the equilibrium moisture content will follow the two processes. First one is the desorption and second is the absorption और sorption भी बोलते हैं उसको। okay, now what will happen in case of the desorption? ठीक है, कि क्या होता है, the characteristics of air such as temperature and humidity are maintained constant। okay, क्योंकि ये स्टडी करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कांस्टेंट आपके पैरामीटर्स टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को अचीव करना पड़ेगा। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन दिस कंडीशंस द सॉलिड्स में एब्जॉर्ब और लूज द मॉइस्चर। ठीक है, एक तो एब्जॉर्ब करेगा या तो मॉइस्चर को छोड़ देगा। मतलब क्या, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कब करेगा? जब उसका वेपर प्रेशर कम होगा सराउंडिंग वेपर प्रेशर से, तब वो एब्जॉर्ब करेगा। और छोड़ कब देगा? जब उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, सो व्हेन द एयर of constant temperature and humidity is continuously passed over the solid containing more moisture than the equilibrium moisture content, then the solid lose water continuously till the EMC is reached। जैसे कि क्या बताया हमने कि आपका पर्टिकुलर कंपाउंड सॉलिड वेट में ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट है आपके इक्विलिब्रियम के मॉइस्चर से। ठीक है, तो एट दैट सिचुएशन क्या होता है कि आपके सॉलिड वेट में से क्या होगा, वो तब तक आपका सॉलिड कंटिन्यूसली वाटर को लूज करेगा जब तक इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट रीच नहीं होता। सो दिस फेनोमेनन इज नोन एज द डिसॉर्प्शन। ठीक है, मतलब इन दिस केस क्या हो रहा है कि डिसॉर्प्शन में क्या, देखिए डायग्राम में देखिए, फर्स्ट डायग्राम है आपका डिसॉर्प्शन, जिसमें कि क्या हो रहा है, आपका सॉलिड वेट में से सराउंडिंग में मॉइस्चर जा रहा है। ठीक है, सराउंडिंग में आपका मॉइस्चर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि डिसॉर्प्शन एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें आपके सॉलिड मटेरियल में ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट होगा एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। तो आपको इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके सॉलिड को खुद में से मॉइस्चर बाहर निकालना पड़ेगा। कब तक? जब तक उसका और एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर कंटेंट इक्वल ना है। ठीक है, उसके अपोजिट आप सॉप्शन देखिए बाजू में। ठीक है, सॉप्शन में क्या हो रहा है कि मॉइस्चर का एरो ने क्या डाउनवर्ड है। ठीक है, आपके सॉलिड वेट की तरफ। क्यों डाउनवर्ड है वो? बिकॉज सॉप्शन में क्या होता है, आपके सॉलिड मास का मॉइस्चर कंटेंट कम होता है एज कम्पेयर टू आपका एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। ठीक है, अब कम होना है मतलब क्या, उसको लेना पड़ेगा इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए, मतलब उसको एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। सो दैट इज रेफर्ड एज द सॉप्शन, जिसमें कि सराउंडिंग को, एटमॉस्फेयर को खुद का मॉइस्चर आपके सॉलिड वेट को देना पड़ेगा कि भाई चलो अब हमें इक्विलिब्रियम करना है तो आ जाओ मेरे लाइन में आप। ठीक है, सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, की वो दो फेनोमेनन के बेसिस पे चलता है, एक तो डिसॉर्प्शन या तो एब्सॉर्प्शन और सॉर्प्शन। ठीक है, डिसॉर्प्शन में वेट मास का मॉइस्चर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सराउंडिंग, जिसकी वजह से खुद का मॉइस्चर सराउंडिंग में छोड़ेगा अंटिल द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। उसके अपोजिट सॉप्शन में क्या होगा, आपके सॉलिड मास में एटमॉस्फेयर कम रहेगा, इसलिए वो एटमॉस्फेयर में से सॉलिड मास में आपका मॉइस्चर कम रहेगा, इसलिए वो एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर उधार लेगा। कब तक? जब तक उसका इक्विलिब्रियम अचीव ना हो तब तक। ओके, मतलब आपके सॉलिड मास में और सराउंडिंग में मॉइस्चर कंटेंट का कंसंट्रेशन सेम आना चाहिए। ओके, सो दिस इज द इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। ओके, सो दिस इज द सेकेंड कंडीशन ऑफ सॉर्प्शन विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, जिसमें क्या होता है कि द एयर ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इज कंटिन्यूसली पास्ड ओवर द सॉलिड कंटेनिंग मॉइस्चर लेस देन EMC। ठीक है, सो at that time the solid will absorb water continuously till the equilibrium moisture content is reached, and this phenomenon is known as the sorption or absorption। okay, now measurement of EMC। ठीक है, कि क्यों हमें इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट को मेजर करना है या क्यों वो यूजफुल है, जो कि मैंने बताया है। ठीक है, सो द सॉलिड सैंपल्स आर प्लेस्ड इन द सीरीज ऑफ क्लोज चेम्बर्स सच एज द डेसिकेटर्स। ठीक है, डेसिकेटर्स मीन्स, जो कि मैंने फर्स्ट स्लाइड पे ही बताया आपको, डेसिकेटर्स जिसमें से नॉन थर्मल वे से आप क्या करोगे, ड्राइंग अचीव करोगे। डेसिकेटर्स कंसिस्ट ऑफ द सिलिका जेल क्रिस्टल्स, जो कि मॉइस्चर को स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करता है। ओके, सो हियर द सॉलिड सैंपल्स आर प्लेस्ड इन द सीरीज ऑफ क्लोज डेसिकेटर्स। ईच चेम्बर कंसिस्ट ऑफ द सोल्यूशन दैट इज द डेसिकेंट
which maintained a fixed relative humidity in the enclosed air spaces. ठीक है, उसमें क्या होता है, आपका डेसिकेंट होता है जो कि वाटर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है. ओके, सो द इन द अदर वर्ड्स द सॉलिड सैंपल आर एक्सपोज टू द सेवरल ह्यूमिडिटी conditions, to the different humidity conditions. Okay, so the exposure is continued until the material attains the constant equilibrium conditions. कि जब तक आपका मटेरियल का कांस्टेंट वेट नहीं आता. समझो कैसे, से फॉर एग्जाम्पल कि आपका 10 ग्राम्स का मटेरियल है, 10 ग्राम को आपने नहीं किया, सीरीज ऑफ डेसिकेटर्स में रखा है. ठीक है, तो टाइम टू टाइम आप उसका वेट चेक कर रहे हो. वेट क्यों चेक कर रहे हो, क्योंकि पहले उसमें मॉइस्चर कंटेंट होगा. आपका डेसिकेटर आपका मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, तो ठीक है 10 से 9 आ जाएगा, 9 से 8 आ जाएगा. फिर कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि 10 का आपका नहीं क्या 6 आ रहा है. ठीक है, तो और 1 घंटे के बाद वे कर रहे हो 6 ही आ रहा है, और थोड़ी देर के बाद वे कर रहे हो 6 ही आ रहा है. मतलब क्या, कांस्टेंट वेट आ गया. मतलब अब उसमें फर्दर मॉइस्चर के कंटेंट्स नहीं है, मतलब उसका कंप्लीट मॉइस्चर लॉस हो गया है. ठीक है, तो द डिफरेंस इन द फाइनल एंड इनिशियल वेट्स गिव द मॉइस्चर कंटेंट. इससे आपको क्या मिल जाएगा कि जो आपका इनिशियल वेट था 10 और जो आपका फाइनल वेट है 6, तो उसके बीच में जो है आपका डिफरेंस आएगा, दैट इज 4. दैट इज नथिंग बट योर मॉइस्चर कंटेंट. ओके, so the equilibrium moisture curve is drawn by taking the relative humidity, that is in case of the percentage, on x-axis and the moisture content on y-axis. Okay, then applications of the EMC, that is this curve will permit the selection of experimental conditions to be used for drying the product. ये स्टडी करने के बाद हमें पता चलेगा कि कौन से एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में हमें ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ड्राई करना है. जैसे कि आप पढ़ते हो कि ये कंपाउंड को इतने टेम्परेचर तक, इतने टाइम तक आपको ड्राई करना है. सो दिस इज the significance of EMC. Okay, then drying should be stopped when the moisture content reaches the level of EMC under the exposed conditions. क्यों, क्योंकि आप फर्दर ड्राइंग करोगे तो उसकी वजह से क्या, जल जाएगा ना प्रोडक्ट. तो उसके वजह से भी कि डिटोरिएशन नहीं होना चाहिए, डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए. सो फॉर दैट पर्पस दिस EMC विल बी हेल्पफुल. ओवर ड्राइंग कैन बी अवॉइडेड. इसकी वजह से ओवर ड्राइंग और उसका डिग्रेडेशन भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द फ्री मॉइस्चर कंटेंट. दैट इज फ्री मॉइस्चर कंटेंट मतलब सीधा सीधा कितना मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में फ्री हुआ है, कितना मॉइस्चर उसने छोड़ दिया है. जैसे कि 10 का 6 हो गया, मतलब 4 ग्राम आपका छूट गया है, मतलब वो 4 ग्राम आपका क्या होगा, फ्री मॉइस्चर कंटेंट. ओके, दैट इज फ्री मॉइस्चर कंटेंट इज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज फ्री टू evaporate फ्रॉम द सॉलिड सरफेस. ओके, दैट इज इट इज इक्वल टू द टोटल वाटर कंटेंट माइनस द इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट. इट इज वेरी सिंपल. Then rate relationship, that is percent loss on drying, LOD, equals to mass of water in sample by total mass of weight in sample into 100. ठीक है, कि वो सैंपल में कितना मास था और उसका टोटल मास वेट सैंपल में कितना आया into 100. That is nothing but the percent loss on drying. Okay, next is the moisture content. Percent moisture content, that is mass of water in sample by total mass of dry sample into 100. एंड लास्ट इज द ड्राइंग रेट, जिसमें कि क्या है, बाकी सेम है, बस टाइम इज इंक्लूडेड. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द ड्राइंग रेट. ओके, सो हियर you can see in this picture the different parameters are given. Okay, so here on x-axis and on y-axis what is given here, the drying rate is given, and here it is studied versus the moisture content. Okay, so आप देखिए पैरामीटर्स A B C D E एंड E के बाद भी प्रेजेंट है. ओके, सो इनिशियल एडजस्टमेंट है A से B तक, दैट इज द इनिशियल एडजस्टमेंट जहाँ पे आपका आप स्टार्टिंग फेज में हो. ठीक है, सो B से C क्या है आपका, इट इज द कांस्टेंट रेट पीरियड, जहाँ पे आपका कोई डिक्रीमेंट या कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, आपको कांस्टेंट आपका रेट शुरू है जो कि एडजस्ट करने में होगा आपका मॉइस्चर कंटेंट. ठीक है, सो C के बाद देखिए C to D क्या है आपका, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट है, बिकॉज इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज द फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड. ठीक है, फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड मतलब आपका वहां से डिटोरिएशन मॉइस्चर लॉस, मॉइस्चर कंटेंट का या लॉस ऑन ड्राइंग, आपका मॉइस्चर बाहर निकलना प्रोसेस में स्टार्ट हो गया है. ओके, सो D to E इट इज द सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज नथिंग बट द सेकेंड फॉलिंग पीरियड. ओके, एंड
नेक्स्ट इज द ई इज द इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, जहाँ पे आपका ड्राइंग अचीव हो चुका है, मतलब आपका इंपॉर्टेंट फेज कौन सा है, C2E, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलिंग रेट पीरियड, जिसमें आपका ड्राइंग स्टार्ट होगा C से, तो D तक आपका फर्स्ट फॉलिंग पीरियड आ जाएगा, मतलब डिक्रीमेंट होगा, मतलब आपका वेट कम हो रहा है और आपका मॉइस्चर कंटेंट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। D2E क्या हो रहा है, आपका पूरा मॉइस्चर कंटेंट कम होते होते E कहीं तो एक पॉइंट है जहाँ पे E पे आपको क्या मिल रहा है, आपका इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, मतलब क्या है, फर्दर अगर आप हीट करोगे तो आपका प्रोडक्ट डिटोरिएट हो सकता है या तो ओवर ड्राइंग हो सकती है, बस अब यहाँ तक ही आपको आपका प्रोडक्ट को हीट करना है। सो दिस इज द रेट ऑफ ड्राइंग, स्पीड ऑफ ड्राइंग, कि आपको कैसा आपका ड्राइंग अचीव करना है पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, ओके। जैसे कि आप देखिए, ये पॉइंट्स याद रखिए बस, A to B, BC, CD and E and after E, okay. So the time corresponding to AB represents the initial adjustment period. During this period the solid absorb the heat and the temperature increases, जो कि आपका A to B पीरियड है। इस A to B पीरियड में क्या होगा, एक तो ये इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड है, यहाँ पे आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, आपका एटमॉस्फेयर में हीट ट्रांसफर होगा और आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। सो एट द सेम टाइम द मॉइस्चर बिगिंस टू इवापोरेट एंड thus टेंड्स टू कूल द ड्राइंग solids, okay. So after some time the temperature stabilizes and heating and cooling rates become equal, मतलब सीधा सीधा A से B आपका क्या है, इनिशियल एडजस्टमेंट्स, जिसका आपको टेम्परेचर हीट आपको प्रोवाइड करनी है आपके सॉलिड वेट को, टेम्परेचर इंक्रीज होगा और उनके बीच में हीट और कूलिंग का रेट इक्वल होगा, ठीक है। Then next, that is BC, point B to C represents the constant rate period, जिसमें कि क्या होगा, आपका temperature will remain constant and the rate of drying will also remain the constant, okay. So the moisture evaporating surface is replaced by the water diffusing from the interior of solid, so thus the rate of diffusion is equal to the rate of evaporation। जितना आपका diffuse हो रहा है, मतलब क्या, आपके वाटर मॉलिक्यूल जितना डिफ्यूज, मैकेनिज्म कौन से है, थियोरीज कौन से है, वाटर के मूवमेंट के, डिफ्यूजन, कैपिलरी एंड प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन दिया हुआ है, मतलब क्या, कि जितना विगरसली आपका वाटर डिफ्यूज हो रहा है उतना ही इक्वल आपका रेट ऑफ इवापोरेशन होगा, मीन्स हियर इन दिस केस द रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल्स टू द रेट ऑफ इवापोरेशन, ओके। सो हियर देयर इज अ कांस्टेंट रेट पीरियड, ओके। द नेक्स्ट, द पॉइंट CD will represent the first falling period, जहाँ पे क्या होगा कि ड्यूरिंग दिस पीरियड द वाटर इज नो लॉन्गर रिप्लेस्ड एट द रेट फास्ट इनफ टू मेंटेन द कंटिन्यूस फिल्म ऑन द सरफेस, ओके। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका ड्राइंग स्पॉट बिगिन टू अपेयर एंड द रेट ऑफ ड्राइंग बिगिंस टू फॉल ऑफ, कि हो गया, अब ड्राइंग हो गया, अब फर्दर आपको इंक्रीमेंट टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ड्राइंग स्पॉट्स दिख रहे हैं, मतलब आपको अब ड्राइंग रेट कहीं तो क्या चाहिए, स्लोअर डाउन चाहिए आपको, ठीक है। सो DE रिप्रेजेंट्स द सेकेंड फॉलिंग पीरियड, मतलब क्या हो रहा है, आपका E पे जाके आपका क्या हो रहा है, अब देखो फर्स्ट फॉलिंग पीरियड के कंपैरिजन में सेकेंड फॉलिंग पीरियड आपका क्या आ जाएगा, फास्टर आ जाएगा, ठीक है। और E पे कहीं तो आपका क्या होगा, द ड्राइंग रेट इज इक्वल टू 0। अब फर्दर आपको ड्राइंग नहीं चाहिए, फर्दर ड्राइंग आ गया तो आपका ओवर ड्राइंग में जा सकता है, प्रोडक्ट आपका जल सकता है, ओके। सो दैट्स वाई द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट रिमेन कॉन्स्टेंट। The drying beyond E, continued drying is waste of time and energy, because प्रोडक्ट आपका जल जाएगा, टाइम वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रहा है, सब कुछ आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई कि जब आपका EMC अचीव हो जाएगा एट द पॉइंट E, यू हैव टू स्टॉप योर ड्राइंग, ओके। सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ योर ड्राइंग। वी हैव स्टडीड द डेफिनेशन ऑफ ड्राइंग, what the drying actually means, after that applications of drying, then several parameters which are involved in the drying. So this is all about today's lecture, okay. Thank you.